हेलो अनीस, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So let's start today class. We are going to discuss about the power system lab. Okay, power system 2 lab. That means we have already discussed some numerical problem on the waste of Y bus formation matrix. Okay. So today we are going to discuss about the Y bus formation of 3 bus where the regulating transformer is connected at the sending in place. Okay, so just 3 bus system, that means 3 transmission line are connected to each other, their parameters are given to you. Okay, so Anish, are you present in the previous class, last class? Anish, Yes, sir. are you present in the So previous? Y matrix वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ, उसमें हम okay, Y bus matrix, that means with regulating transformer or without regulating transformer? ट्रांसफार्मर वाला पार्ट में नहीं था सर. Transformer part में नहीं था. Okay, so you are present in the simple 3 bus system and 3 transmission line. Okay, so Yes, sir. for that system you can find out the Y bus matrix, is it not? If regulating transformer is not connected here, simply just bus number 1, 2, 3 are present and transmission line are connected. So are you able to find out the Y bus admittance matrix for that case? हेलो. हाँ अनीश, हाँ बोलिए सर. ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 3 बसेस है, ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स दिया हुआ है. देन आर यू एबल टू फाइंड आउट द वाई बस मैट्रिक्स एडमिटेंस मैट्रिक्स? हाँ सर. मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? सर 3 into 3. 3 into 3. Since the 3 bus are exist in the power system, so Yes, sir. matrix order is 3 into 3. Okay, so here transmission line parameters between bus number 1 and 2 are given by Z12. Okay, and bus number 1 and 3 are represented by Z31 and bus number 2 represented by 2 and 3 represented by Z23. Okay, so transmission line parameters are given here. Okay, that means Z12. Suppose that line number, this is your line number 1 and this is your from bus number. This is representation of bus. जिस बस से स्टार्ट हो रहा है सो एंड जिस बस से कनेक्टेड है उसका ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स दिया हुआ है. दैट मीन जेड, इसको सफिक्स में हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? Z12. ओके, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, दैट मींस Yes, sir. Yes, sir. J12. Z12. Z Yes, sir. represents Z12. Admittance. Yeah, impedance. impedance. So Z12 is given to, that means 0.05 plus J 0.15. Okay, so between the transmission line 1 and 2, sorry, bus number 1 and 2, transmission line parameters are given in the impedance form. Okay, that means Z equal to resistance plus reactance. Okay, and similarly bus number 1 and 3, that means Z31, impedance are given at 0.05 and reactance value 0.15. 0.15. Okay, and similarly between the transmission line 2 and 3, that means bus number 2 and 3 given to you 0 and Yes, 0.5. Okay, suppose that here ये प्रॉब्लम में हम लोग यदि ट्रांसफार्मर को, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट नहीं करते हैं, सब कुछ नेगलेक्ट करके चलते हैं, देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स? सर each impedance का सर हम लोग रेसिप्रोकल लेकर एडमिटेंस निकाल लेंगे. यहाँ पे उसके बाद Y मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे. वाई मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे. तो
तो जस्ट हमको जस्ट यहाँ पे तुम लोग एक वैल्यू को, तो यहाँ पे हम जस्ट इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं विथ रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, एंड ओवरव्यू विदाउट द रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। विदाउट द रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर दैट मींस Z12 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका y एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, एडमिटेंस निकालना पड़ेगा। एडमिटेंस कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करो तो Y12 का Y12 का कितना हो जाएगा, पहला ट्रांसमिशन लाइन क्या है, यदि इसको हम लोग इम्पीडेंस दैट मींस Y12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल से फाइंड आउट करेंगे ना। हाँ सर, पहले तो एडमिटेंस निकालना होगा। हाँ, तो पहले एडमिटेंस फाइंड आउट करो सब ट्रांसमिशन लाइन का, कितना आएगा Y12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करो तो उसको जस्ट टेल मी। सर Y12 इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करके जस्ट वैल्यू टेल मी। (0.05 प्लस 0.05 by 250 0.15, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, कितना लिख सकते हैं, सॉल्व किया। सर डिवाइड करना। हाँ, जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी द वैल्यू। So you can just multiply with complex conjugate of this quantity in numerator and denominator. Yes sir. So in numerator part 0.05 minus J 0.15, okay, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, सर 2 plus 6J। 2 plus 6J। Yes sir। 2 minus 6J sir। 2 minus 6J exactly. So this one will becomes 2 minus 6J. Is it clear to all of you? Hello. Okay, so admittance between Y12 is your 2 minus J6. इसी तरह से हम लोग सबका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, Y12 Y13 Y23 यदि हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं तो Y23 सब फाइंड, मतलब रेसिप्रोकल इसका ले लेना है ना इम्पीडेंस का, ओके। देन Y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, Y11 की जगह क्या लिखते हैं सर, Y1 जितना कनेक्टेड है सर उसके साथ, जितना तो उसको कनेक्टेड सम है, कर देते हैं। ओके, हाँ जितना हाँ, तो जितना वन नंबर बस में कनेक्टेड सर। है उसका एडमिटेंस ऐड कर देना है, यदि शंट में भी कोई हाँ, शंट एडमिटेंस है तो उसको भी ऐड कर देते हैं, उसको भी ऐड कर देना। हाँ, उसको भी ऐड कर देते हैं। देन वी कैन जस्ट ऐड दी Y बस एडमिटेंस Y11 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, दैट मींस कैपिटल Y12 या कैपिटल Y21 इक्वल टू उसका नेगेटिव ले लेते हैं। माइनस, हाँ, नेगेटिव साइन लेकर के। So this is for the without regulating transformer, okay.
Now, in this case, we are just connecting one regulating transformer, then of nominal ratio given to you 1.02. Okay, so this system is maybe similar to the previous one, that means without regulating transformer. A 3-bus system is shown in the below figure. Assume an ideal transformer connected between bus 2 and 3 in series with a line reactance J 0.5 per unit. If of nominal tap ratio given to 1:1.02. Okay, so 1:1.02 दिया हुआ, that means placed at the sending. So ये वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? ये यदि हम लोग इधर का वोल्टेज बस 2 का है, बस 2 से कनेक्टेड है, दैट मींस बस 2 का वोल्टेज हम लोग रिप्रेजेंट करें हाँ V2 से, यहाँ ये पे सर बस 1 का V1 से, यहाँ पे बस 3 का V3 से। विथ यदि इधर V2 है तो इधर कितना हो जाएगा? V2 डैश ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वोल्टेज जो होगा हाँ V2 डैश, तो V2 डैश बाय V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिवर्स ऑफ दैट वन, दैट मींस 1.02:1। ओके, तो अब क्या करना है, हम लोग जो करंट का वैल्यू लिखेंगे, जस्ट जैसे एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टोटल बस पे क्या करते हैं, करंट का इनकमिंग एंड आउटगोइंग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग इक्वेशन लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर हाँ बस पे, तो उसमें हम लोग को ये वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, V2 डैश के लिए, तो जस्ट कंटिन्यू। सो एक केस हम लोग विदाउट कंसीडर कर लेते हैं कि यदि ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, टोटल ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, ये रिएक्टेड ट्रांसफार्मर भी नहीं है और ट्रांसमिशन लाइन और भी इम्पीडेंस नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका हम लोग वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई बस हम एक फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, Y12, तो Y12 यदि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, और यदि इसका हम लोग कितना लिख सकते हैं, जिससे कनेक्टेड है उसका टोटल हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें जैसे 2 और 3 के बीच में रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट नहीं किया हुआ, नहीं है सर तो इसका वाई बस मैट्रिक्स हम कितना लिखेंगे? सर Z12 होगा सर वाई बस मैट्रिक्स कितना होगा? एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना होगा? एडमिटेंस सर ऑर्डर तो 3/3 होगा क्योंकि बस तो हमारा 3 है। एग्जैक्टली, बस 3 है तो ऑर्डर 3/3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस जिसके सर बीच में कनेक्शन नहीं है वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसको सिर्फ हटा देंगे। हटा नहीं देंगे, उसको 0 लिखेंगे टोटल। ठीक है, हाँ मतलब वही जैसे Y23 लिखना है या Y32 लिखना है, तो ये एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। बाद बाकी के लिए तो सेम रहेगा। ठीक है, हम्म बाद बाकी के लिए सेम रहेगा, तो इसके लिए Y12 यदि इतना आ रहा है 2 - j6, तो यदि इम्पीडेंस सेम है तो Y13 भी कितना आएगा? सर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, Y13 भी सेम ही आएगा, और शंट एडमिटेंस इसके लिए है नहीं, तो Y11 की जगह कितना आ जाएगा? 2 - j6 प्लस 2 प्लस - 2 j6, माइनस जैसे that means 4 - j 4 माइन J12 4 - j12। ओके, इसका वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म करके वो पूरा एलिमेंट का वैल्यू बोलो तो इस केस के लिए कौन सा एलिमेंट 0 होगा और कौन सा एलिमेंट में वैल्यू क्या रहेगा, ये काम Y11 का वैल्यू एक्सप्लेन कर दिए। टोटल मैट्रिक्स कंप्लीट करके 3/3 इसका हमको वैल्यू बताओ। Y11 तो Y11 तो एक्सप्लेन कर दिए, Y Y12 लिखना है, फिर Y13 लिखना है, Y21, Y22, Y33 Y23 एंड नेक्स्ट Y31, Y32, Y33, इसको टोटल कंप्लीट करके वैल्यू। तुम लोग क्या कंप्लीट करके हमको वैल्यू बोलो।
सॉल्व हुआ किसी का? हाँ सर, एक मिनट, हो गया हाँ जस्ट टेल मी। सर। y11 आएगा 4 माइनस J12। 4 minus J12, yeah, it is written here. हाँ No, I have not written. So you can just write y bus एक मिनट, y bus equal to y11 का वैल्यू बोलो। सर y11 का आएगा 4 माइनस J12। 4 minus J12, यस सर। exactly. Next y1 -2 plus J6। minus 2 plus J6, exactly. Minus 2 plus J6, just write minus 2 plus J6. Next y13 sorry, y13 कितना होगा? सर y13 -2 plus J6। minus 2 plus J6, minus 2 plus J6, y21 कितना हो जाएगा? -2 plus J6 opposite of minus y12। minus 2 plus J6, Yes, sir। y22 y22 2 minus J6। same things, that means minus 2 plus नहीं J6, सर, 2 minus J6 sorry y22 डायगोनल y डायगोनल है ना सर। 2 y22, minus J6। so it is diagonal Yes, sir। matrix, okay. डायगोनल है सर, तो 2 minus J6। 2 plus J6, and सर similarly 2 minus J6। सर 2 y22 minus J6। सर y22 आएगा 2 minus J6। हेलो yes, I got your point. Next y सर y23 आएगा 0। y23 is 0, 0। Yes, sir। and similarly y y31 आएगा -2 plus J6। minus 2 plus J6। J6. Next, तो 0 सर। next 0. Is it clear to all of you other than Anis? सर उसके बाद होगा 2 minus J6। 2 minus J6. Okay. 2 minus J6. ये पावर सिस्टम का हम लोग y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, इसका हम लोग y बस मैट्रिक्स का हम लोग, यदि ये पावर सिस्टम दिया हुआ है दैट मींस 2 और 3 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा कि जो एडमिटेंस मैट्रिक्स y23 और y32 whatever may be element in the y bus admittance matrix, that is equal to 0 because no connection between the bus number 2 and 3. So is it clear to all of you? Hello, hello, is it clear to all of you other than Anish, whatever may the other participant or student?
Okay, I think it is clear because I have already told all these things in earlier section. So now just concentrate about the bus number 2 and okay. So between bus number 2 and 3. अनीस को छोड़ के कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. I think it is clear to all of you. Okay. So I just move towards the regulating transformer. So when the regulating transformer is present at the sending, so V2 dash by V2 is your 1.02. That means it is indicated by A. So that is A equal to given to you 1.02. Okay. So this type of system I have already derived the expression for the Y bus admittance matrix with the general nominal ratio, that means represented by A. Okay. So their general expression I have already tried. So based on that derivation, we just put their value of A in this particular problem, that is 1.02. A is equal to 1.02. Okay. So just we have to put 1.02. Now, so if you connect regulating transformer between bus number 2 and 3, so we can just represent in the pi nominal pi network. So your series represented series admittance represented by Y suffix 3, or maybe shunt admittance represented by Y shunt. Okay. So this parameter we have to add in whatever I have derived in the previous Y bus admittance matrix. Okay. इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, जो भी हम लोग अभी जो वाई बस मैट्रिक्स ड्राइव किए हैं उसमें. ठीक है. तो वाई बस मैट्रिक्स जो ड्राइव किए हैं उसमें हम लोग को इसका ऐड करना पड़ेगा. तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग शंट एडमिटेंस मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, शंट एडमिटेंस मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, सीरीज का कितना दिया हुआ है, सीरीज का कितना दिया हुआ है, सीरीज का कितना दिया, y और 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 3 के बीच में मैट्रिक्स दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ, हाँ -2 + j6, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 में 0 था सर, 2 और 3 के बीच में कनेक्शन है ना था. हाँ उसमें कनेक्शन नहीं था. ठीक है. हम लोग कनेक्शन विदाउट एक्सेप्ट करके हम लोग वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स लिख लिए हैं. ठीक है. इसमें कनेक्शन नहीं था, उसमें वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स हम लोग लिख लिए. अब इसमें हम लोग क्या करना है, ये नेटवर्क को ऐड करना है. नेक्स्ट जो नेटवर्क है इसका हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स लिख लें. ठीक है. y23 0 0 2 3 एंड 3 2. ओके. अब ये जो नया एडमिटेंस मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मींस ये वाला नेटवर्क जो आ रहा है, जब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर 2 और 3 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम का हम लोग को फाइंड आउट करके एडमिटेंस मैट्रिक्स उसमें ऐड करना है पुराना वाला में. ठीक है. तो इसमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शंट एडमिटेंस मैट्रिक्स हियर आई थिंक गिवन टू यू, या इन लाइन विद द रिएक्टेंस वैल्यू इसका दिया हुआ है सिर्फ कितना, हम लोग Z12 जिस समय ये वाला पैरामीटर्स नहीं था, दैट मींस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर नहीं था, Z23 नहीं था. ठीक है. तब हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं Y bus matrix. Now this parameter given to you with a line reactance, that means line reactance between the 2 and 3 is your J0.5. J0.5. Okay. So इस केस में क्या हो जाएगा, Y23 that means 3 -2j minus 2j. So just find out the Y23. इस केस के लिए यदि हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो लिख सकते हैं Y23 इक्वल टू -2j. yes sir. Exactly. So Y23
equal to 1 by 0.5, that means minus y 23 equal to 1 by j 0.5, j 0.5, that means equal to minus 2j, 2j. minus 2j. And next, due to the regulating transformer coefficient, that means of nominal ratio, so y series equal to ये जो हम लोग सीरीज लिख रहे हैं y series between 2 and 3 equal to क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे ऑफ नॉमिनल रेशियो a से, तो y सीरीज जो रिप्रेजेंट किया है इसमें 2 और 3 के बीच में बस नंबर, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, ऑफ नॉमिनल रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका जनरल डेरिवेशन देख सकते हो, इसका डेरिवेशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे जिसमें रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर हम लोग इन्वॉल्व किए थे, सेंडिंग इन आइदर रिसीविंग इन, सो y23 इक्वल टू क्या था, मल्टीप्लाई विद द ऑफ नॉमिनल रेशियो, दैट मींस a की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर वैल्यू, दैट मींस 1.02, ओके, सो y सीरीज equal to of nominal ratio into y23, so y series equal to a into y23, so sorry, so just put the value of a and y23 and just find y series, okay, so y23 1.02 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, minus 2.04. minus 2.04, 1.02 into minus 2j equal to minus j 2.04, 0. 2.04, okay, 2.04, and y shunt 1 and y shunt वाला पैरामीटर्स में क्या होगा, a into a minus 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस y shunt वाला जो पैरामीटर्स है shunt 1 and shunt 2, so y shunt 1 equal to a into a minus 1, सर ऐसा क्यों हो रहा सर, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जब हम लोग रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर आइदर सेंडिंग इन या रिसीविंग इन में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या किए, इसका वोल्टेज V2 डैश बाय V2 इक्वल टू कितना किए, ऑफ नॉमिनल रेशियो जो भी है 1.02, दैट मींस ऑफ नॉमिनल रेशियो A जो इक्वल टू 1.02, ठीक है, तो इस पे हम लोग यदि तीनों बस पे यदि हम लोग दैट मींस बस नंबर 1, बस नंबर 2 और बस नंबर 3 पे करंट का वैल्यू यदि हम लोग लिखेंगे, दैट मींस करंट का इक्वेशन जब लिखेंगे I1 इक्वल टू कितना करंट इनकमिंग आ रहा है, कितना करंट आउटगोइंग आ रहा है, सिमिलरली बस नंबर 2 पे यदि हम लोग इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट लिखेंगे, एंड बस नंबर 3 पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट लिखेंगे, तो वहां पे क्या होगा, जो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म जो लिखे थे ना, यस सर, V2 डैश इक्वल टू V2 इंटू 1.02, ठीक है, तो इस समय जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग यदि फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का टर्म आएगा ना, यदि बस नंबर 3 पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं टोटल इनकमिंग करंट, तो जो इनकमिंग आ रहा है उसको पॉजिटिव और जो आउटगोइंग जा रहा है उसको नेगेटिव, तो यहाँ पे जब हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू वाई शंट एडमिटेंस जो भी रहा कनेक्टेड प्लस जो आउटगोइंग जा रहा है उसको कितना लिखेंगे, ये करंट माइनस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, हम्म, तो कितना आएगा V3 माइनस V2 डैश। अब V2 डैश को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा V2 डैश इक्वल टू V2 इंटू A, तो यहां से A का टर्म आ रहा है, ठीक है। अब उसको यदि सेपरेट करोगे और Y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखोगे तो वहां पे उसका Y11 Y22 में कोफिशिएंट टर्म आ रहा है, ठीक है। तो उसका जस्ट डेरिवेशन देख लेना एक बार। सिमिलरली जैसे हम लोग कोई भी बस सिस्टम है, ठीक है, हम लोग Y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? सिंपल सर, टोटल इनकमिंग करंट एट पार्टिकुलर बस इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ओके। तो यहाँ पे ऑफ नॉमिनल रेशियो है, वो टर्म आएगा तुमको जब उसको Y11 Y12 Y13 के फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक है। इज इट क्लियर टू अलिस? yes sir. Okay. So just I put on that standard derivation the particular value of A is equal to 1.02. Okay. So you just follow this one and calculate the value of Y sine to 1. That means A into A minus 1. Okay. A into A minus 1. कितना आएगा इसका वैल्यू? A into A minus 1 करोगे तो 1.04. 1.04. A minus 1 ना सर? Y sine to 1 ये हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। A into A minus 1 into Y23, कनेक्शन किसके पीछे? Y23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था? Y सीरीज लिखना चाह रहे थे ना, तो सीरीज वाला में आ रहा था कितना? A into Y23। शंट वाला एलिमेंट में कितना आएगा? A into A minus 1 into Y23, ठीक है। सिमिलरली सन 2 के लिए कितना आएगा? 1 माइनस A into Y23। सन 1 सन 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना। Y सन 1 इक्वल टू A into A minus 1, Y सन 1 इक्वल टू A into A minus 1 into Y23, A into A minus 1, A minus 1 into Y23. Y23 is equal to minus 2J already we find out. So Y23 इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? सर A into A minus 1 का वैल्यू तो आ रहा 0.02. इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7 आ जाता है। और इंटू करेंगे A minus 1 दैट मीन्स कितना होगा? 1.02 minus 1 that -1. 0.2, हाँ 0.2 into 1.02 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो। A minus 1 into Y23 equal to 1.02 into 0.2 सर into 0.0204. whatever may be value 0.02 into Y23. So Y23 is your minus -2. minus 2J 2J. minus 2J
ये वैल्यू जो भी आएगा कितना आ रहा है, -0.0408 माइनस 0.0 0.08 408 यही आ रहा है ना। ये वाई सेंट वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वाई सेंट टू इक्वल टू 1 minus a into y23, y shunt 2 equal to 1 minus a into y23, y shunt 2 equal to 1 minus a into y23, 1 minus a into y23, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वन सर 0.02 0.02 2.04 into मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, -2j से, -0.20 0.02 into -j2 हो जाएगा -j2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो -0.04 -0.04 अब ये पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट, इसको हम लोग क्या करना है, इस पिछला वाला जो सिस्टम था उसमें ऐड हो रहा है ना, तो जस्ट इसमें कौन कौन सा पैरामीटर पे इफेक्ट होगा, y पे सिर्फ 2 3 और 3 2 y 2 3 and 3 2 3 2 एंड और 2 3 2 3 और कोई एलिमेंट पे, और कोई एलिमेंट पे नहीं होगा सर, क्योंकि कनेक्शन तो सिर्फ 2 और 3 के बीच में ही नहीं था। कनेक्शन तो 2 और 3 के बीच में, तो y23 और y32 एलिमेंट दैट मींस चेंज होगा, और y22 बस नंबर 2 पे, बस नंबर 2 पे भी तो इफेक्ट होगा, जो 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 बस पे है बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3 दैट मींस y22 एंड y33, हाँ सर वो भी होगा सर, y22 भी चेंज होगा और y33 भी चेंज होगा, y33 भी क्योंकि चेंज होगा, एग्जैक्टली दैट हाँ, मींस जिस पे बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3 का इफेक्ट है उस टोटल पे चेंज होगा, इसको यदि हम लोग ऐड करें, ठीक है, क्योंकि ये बस नंबर 2 पे ये टोटल ऐड हो जाएगा शंट एडमिटेंस जो भी है, ठीक है, इसका बस नंबर 3 पे शंट एडमिटेंस, सीरीज एडमिटेंस, तो हम ऑलरेडी ऐड करेंगे, दैट मींस वो 2 पे आ जाएगा, 2 पे हम लोग क्या करेंगे, तो y22 कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि y सीरीज चेंज हो गया ना, टोटल यस सर, y सीरीज चेंज हो गया, इसका तुम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, y2 जो पहले है वो तो रहेगा एलिमेंट और ये ऐड हो जाएगा, दैट मींस जहां पे 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे तो एज प्रीवियस वन हो जाएगा, ठीक है, प्रीवियस मैट्रिक्स का जो है, लेकिन जहां 2 2 या 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगा, कौन कौन एलिमेंट पे, यदि हम जनरल वे में सर y22 y33 y23 y23 और 32, ठीक है, वो सब पैरामीटर्स चेंज करेगा, जस्ट यू ट्राई टू राइट दी y बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, so y22 y33 and y23, so just 2 3 that means 3 2 सेम ही रह जाएगा दोनों, हाँ नहीं, इसको चेंज यस सर, करके ऐड करके और हमको फाइनल वैल्यू इसको लिखने की कोशिश करो, ओके, तो just we stop here and give you one more class for this lab session, okay,
and in between you just complete your attendance process, and then we will continue our next period. Okay, so just we stop here. Yes, sir. Okay.